expressed our concern with regard to this war. There were many pertinent issues like the silence of the government with regard to the unilateral attack against Iran. And we also raised the issue of being silent on the assassination of the supreme leader of Iran and various other concerns with regard to the shortage of LPG and how the war is affecting different sectors of economy. The government has justified that there has been no silence. We have been talking. And government also assured that there will not be any shortage of LPG or CNG or crude oil or petroleum products in this country. And they assured that everything is done to streamline. And they also said that our wish is that the war ends quickly because the war is affecting everybody. And when I persistently asked, they said that in a conversation between Prime Minister and US President, our Prime Minister has conveyed our desire that the war ends fast because the war, as said by the External Affairs Minister, war hurts everybody. In any case, the general consensus amongst the opposition parties is that the India should have taken a forthright position with regard to the war that was waged against an independent sovereign country. पहली चिंता तो यही थी कि भाई पूरा देश इस वक्त गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा है और अब तो पेट्रोल पंप्स पे जिस तरीके से भीड़ लग रही है तो इससे एक पैनिक क्रिएट हो गया और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन जो भाषण दिए दोनों सदनों में उससे भी एक ऊहापोह और घबराहट की स्थिति लोगों में है। तो इस पे सरकार का अपना ये पक्ष था कि भाई हम 60% एलपीजी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और गैस की कोई कमी नहीं होने पाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास तेल का भी रिजर्व है। तो इस तरह से उनका तो यही कहना था। हाँ, कमर्शियल सिलेंडर में बता रहे थे कि हमने 50% रिड्यूस किया है, ऐसा कह रहे थे। तो कुल मिला के जो हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई हमको इस युद्ध में पड़ने की क्या आवश्यकता थी और जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने यात्रा क्यों की या पाकिस्तान कैसे चौधरी बन रहा है, तो अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो सर, आप लोगों के जो क्लैरिफिकेशन थे, क्योंकि आप लोग लगातार एलपीजी पे भी सवाल पूछ रहे थे, सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही, प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में रखा, उस पर भी आप लोगों को ये था कि चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे, वो संतुष्टि हुई आप लोगों को कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे इस बात को। अब देखिए, आप 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। You see, in the all-party meeting, there was a briefing to all the floor leaders from various political parties relating to the conflict and the war in West Asia. The primary briefing was about the energy situation, the conflict as it exists and what has been the context of it. And where is India in this entire context? How is India prepared, especially with relating to energy crisis and whether there is an energy crisis? And second, how is India positioned geopolitically in the diplomatic front? So the government clarified and placed on record on the geopolitics and the diplomacy. There were several questions from the floor leaders. They were also addressed on one part by EAM, Dr. Jaishankar ji, and one part by Hardeep Singh Puri ji, Honorable Minister, Petroleum and Natural Gas. As far as energy sufficiency and energy availability is concerned, data and information was provided in terms of how India has the necessary energy, has the necessary oil,
LNG, PNG availability. And on side of external affairs, how India is handling this situation in the West Asia, diaspora and their security, and also relating to how India is positioned to take things forward from here. So I believe all the floor leaders there were reasonably reassured with the views of the government. And I think there is a common consensus among the parliamentarians and the political community here that we are all together in this work to ensure that India emerges unscathed. And I think that's the message that we take. देखिए, मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष के सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टी के अनुसार देश हित में जो सवाल उठाने थे उठाए। सरकार की तरफ से जवाब तो आए, लेकिन संतोषजनक ऐसे जवाब नहीं आए। इसलिए हमारी मांग है कि नियम 193 का जो नोटिस है हमारी पार्टी की तरफ से भी और पार्टियों से भी है, लोकसभा में और राज्यसभा में नियम 176 से नोटिस है, उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जिससे पूरे देश के सामने हर चीज साफ हो जाए। सरकार ने क्या कहा, आप लोगों को क्या जानकारी दी? अब सरकार के लोगों से पूछो। लेकिन आपने क्या मुद्दे उठाए? समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे, देश हित में सभी मुद्दों को उठाया, चाहे वो पेट्रोलियम की क्राइसिस का सवाल हो, गैस की क्राइसिस का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो, जो भी मुद्दे उठाने चाहिए थे, मैं समझता हूं जो देश के लोगों के चिंता में है आज मुद्दे, उन सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया। तो सरकार तो कह ही रही है, सरकार को कहने से क्या होगा, लेकिन हकीकत ये है, जो सच्चाई है कि युद्ध तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमजोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। अपोजिशन का काफी सवाल था, काफी आप लोग अनसेटिस्फाइड थे, लगातार जो चीजें चल रही थी वेस्ट एशिया को लेके, तो क्या इस बैठक में आप लोगों की जो नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। अब तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है, कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ कहा गया जब आपने? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं। थैंक यू।